A very good morning to all the students, and I hope you all are prepared for your final exams. So before we actually begin with the process, it's important to have a quick look at the instructions that are being provided by the university. And these instructions are available on the notice board of Punjab University, Chandigarh. You can have a look at all these instructions on your own. And these instructions are common for all the classes. Especially, I'm going to discuss the instructions for the regular students and definitely the students who have to appear in deficient subjects, they have to appear in reappears or improvements, or the private students. Instructions for them are going to be discussed later on. This video is specially for the regular students, whether they belong to the UG group, undergraduate classes, or the postgraduate classes. So without any more delay, let's begin with the instructions. So first of all, a very good luck. Wish you all the very best for your exams. And what are the instructions for online exams June 2021? So this you can see on my screen. So these are the instructions for all the students who are appearing even semester examination. And these are for regular students of the colleges, university departments. So these exams are to be conducted, you all know, 28th जून से आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड में होंगे पेपर्स आपके। और यहाँ पे इन एग्जाम्स में अगर किसी को लगता है कि हमारा अटेम्प्ट अच्छा नहीं है, वी वांट टू इम्प्रूव द एग्जाम्स, तो जो इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम्स हैं आपके, ये जो इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम्स हैं या एडिशनल सब्जेक्ट्स आपने देने हैं, उनकी डेट्स लेटर ऑन अनाउंस होंगी। जिनको इन एग्जामिनेशन का रिजल्ट पसंद नहीं आएगा, उनके लिए एग्जाम्स दोबारा होंगे, यूनिवर्सिटी विल इंटीमेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर environment and road safety education, violence against women and children and drug abuse will be released shortly. तो आपने देखा होगा आपकी डेट शीट में अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि EVS का पेपर कब होना है, वो होगा और यूनिवर्सिटी इंटीमेट करेगी आपको। सारी की सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट ऑन यूनिवर्सिटीज नोटिस बोर्ड। यूनिवर्सिटी का एड्रेस है www.puchd.ac.in. You will get everything on that website. So first of all, these exams are for, firstly, I'm going to discuss, these instructions are specially for 4th, 6th, 8th and 10th semester, जो exams 28 से शुरू होने वाले हैं। second semester के जो exams हैं वो later on शुरू होंगे, उनकी instructions थोड़ी सी हो सकता है vary कर जाएं, but these are specially for the upcoming exams जो Monday से शुरू होने वाले हैं। The online examination for semester regular and repeat, deficient subjects, USOL, private students will commence from 8th. तो हमारे पास यहाँ दो dates आ गई हैं। जो 4th semester onwards हैं उनके लिए हमारे पास 28th of June है, 28th June, और जो हमारे पास second semester है उनके लिए हमारे पास date आई है 8th July, right? I am not very good at writing like this. So it's 8th July. No, not bad. So 8th July for second semester and 4th onwards 28th June. And next, admit cards and roll numbers. The admit cards and roll numbers of the college students will be issued by the respective colleges, and so you are going to get the required admit card or your roll number from your colleges. For the regular students, college will provide, university will provide for university departments. And where you are supposed to get the verified date sheets. So do not rely on the messages that your friends circulate, rather rely on some authentic source, and the most authentic source is this. You can go to this email address and you can find the date sheets, updated date sheets, and if you are a college regular student, definitely your college will provide you the same. Notice board, then notice board is very important. Whatever is important, whatever changes are going to happen, notice board पे सब कुछ inform किया जाएगा students को university के notice board पे. So university के notice board का link जो है वो ये दे रखा है यहाँ पे, it's there, right? आप यहाँ से इसको copy कर सकते हो या university की website मैंने बता ही दी है, वहाँ से you can just have it, look at it. Then time slots क्या हैं? Time slots are little changed. ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि time slot के चक्कर में आप अपना पेपर मिस कर दें, especially evening वाले. Morning का जो slot है that is from 9:30 to 12:30
PM 9:30 AM to 12:30 PM और इवनिंग स्लॉट है 1:30 to 4:30। तो ये 2 to 5 वाला टाइमिंग्स नहीं है, 1:30 to 4:30 है। बी वेरी केयरफुल, आपको टाइमिंग्स का ध्यान रखना है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज फॉर डाउनलोडिंग इवन योर क्वेश्चन पेपर्स। सो एनी अदर टाइम स्लॉट इफ नीडेड यूनिवर्सिटी विल इंटीमेट। अभी तक ये 2 ही स्लॉट्स हैं, अगर आपको कोई गलत स्लॉट बता रहा है, कोई और स्लॉट बता रहा है तो आपके साथ प्रैंक हो रहा है। दीज आर द 2 slots, 9:30 to 12:30 and 1:30 to 4:30 for evening examinations. And let's move to the next page of the instructions. So on this page, as you can see, there are certain instructions regarding how to download the question paper. So question paper कैसे download करना है, regular students खुद ही कर सकते हैं। Question papers के लिए आपको जाना है इस link पे। You have to go to this online.puexam.in। सारे बच्चे खुद examination, जो आपका examination के लिए question paper है required, वो आप यहाँ से download कर सकते हैं। The question paper can the students can download the question paper directly from the download question paper link without logging in. आपको login करने की जरूरत नहीं है, आप directly download कर सकते हो, but make sure कि वो सही question paper आपने download किया हो, subject आपका ही हो। Downloading the question paper is students' responsibility as the same will not be forwarded to them by any other means. तो यहाँ यूनिवर्सिटी यही कह रही है कि स्टूडेंट्स खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, वो खुद अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो डाउनलोड करेंगे, बट रेगुलर स्टूडेंट्स को अक्सर कॉलेजेस हेल्प कर देते हैं। All students appearing in the examination will download the question paper on their own from the website mentioned at point number 5A. तो आप लोगों ने खुद ही, यहाँ इन्होंने दे दिया point 5A में online.puexam.in, यहाँ से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करने हैं। तो टाइम स्लॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइम स्लॉट 9। अब क्वेश्चन पेपर्स का टाइम स्लॉट क्या है? क्वेश्चन पेपर एक्टिवली अवेलेबल हो जाएंगे एट 9:10, 20 minutes prior to your paper. तो अगर 9:10 पे ही आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया, you'll have 20 minutes extra to review it, to read it. उसके बाद इवनिंग स्लॉट के लिए 1:30 पे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे वेबसाइट पे, और 9:10 पे मॉर्निंग में, 1:10 पे इवनिंग स्लॉट के लिए। अब कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है इसको? अटेम्प्ट क्या करोगे? इंस्ट्रक्शंस जो भी क्वेश्चन पेपर्स में है वही फॉलो करनी है, एक्स्ट्रा कोई भी इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी नहीं देगी। ड्यूरेशन जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा, उसी को फॉलो करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्टेड, जैसे पिछली बार यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर सितंबर में शॉर्ट हो गए थे, हाफ पेपर हो गया था, टाइम कम हो गया था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन्ड है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, वो एज इट इज करने हैं, यूनिवर्सिटी जो कह रही है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द पेपर इन ब्लू बॉल पेन। वेरी क्लियरली इट इज रिटन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपने यूज करना है। अब ये कौन सा होता है? ये नॉर्मल पेन, आप किसी भी बुक शॉप से जाओगे, उनको बोलो हमें ब्लू बॉल पॉइंट पेन चाहिए, you'll get it. ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन कोई नहीं यूज करेगा। अब आंसर शीट्स कैसी होंगी? तो आंसर शीट्स आपने इस बार भी A4 साइज की ही शीट्स लेनी है, जैसे लास्ट टाइम ली थी। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 20 शीट्स मिलेंगी। लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर। तो फॉर यूजी यू नीड 20। अगर आप बीए के बच्चे हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तो आपने 20 शीट्स यूज करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो A4 शीट्स का नंबर है दैट इज 24। बीए, बीकॉम, यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए 20 और पीजी के लिए 24। ये भी आपको नई नहीं है कोई, आपके लिए पुरानी ही इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू राइट देयर आंसर्स प्रिसाइजली एट अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर नॉट एक्सीडिंग द पेज लिमिट। अगर 20 शीट्स आपको उन्होंने बोली है यूनिवर्सिटी ने, तो आप 20 से इनको एक्सीड नहीं कर सकते यूजी के लिए, और पीजी में भी 24 से ज्यादा शीट्स यूज नहीं कर सकते। और representative soft copy of the answer sheet of 20 A4 pages for UG and 24 A4 pages for PG courses will be uploaded on the portal and that is available. UGC की UGC कह रही हूँ, PU की वेबसाइट पे that's available। दोनों ही सॉफ्ट कॉपीज की रिप्रेजेंटेटिव की आपकी आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए वो है। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट। और आपको यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट पेज की बजाय कहीं पे भी अपना रोल नंबर मेंशन किया, तो बड़े क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है दैट योर प्रोसेस फॉर इवैल्यूएशन इट विल स्टैंड रिजेक्टेड।
तो आपने कहीं भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, फर्स्ट पेज के बिना कहीं अपना रोल नंबर शीट के अंदर नहीं लिखना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. So now it is for the submission. How you have to finally submit your answer sheets. Submission of the answer sheets by students of colleges, university departments, regional centers appearing in both morning and evening slots. तो क्या instructions है, आपने submit कैसे करने हैं paper? The students of colleges, universities may submit their answer sheets either online or physical mode of submission. But in some cases, you may asked to do the same. आपको आपके colleges जैसे instruct कर रहे हैं, आपको आपकी university के departments जैसे instruct कर रहे हैं, आपने वैसे ही करना है. So submission of answer sheets through both the ways is not permitted. But अगर आपके लिए आपका college को instruction दे रहा है, you have to follow it. The candidates should opt only one manner of submission of the answer sheet. If students have opted online, इनको हम थोड़ा सा skip करेंगे. यहाँ important बात क्या है? Pay attention. पहले आपको पेपर को अपलोड करने के लिए, सबमिशन के लिए 1.5 घंटा मिल रहा था. अभी आपको सिर्फ 60 मिनट्स मिल रहे हैं. Be careful. आपको यहाँ 60 मिनट्स मिल रहे हैं. पेपर अटेम्प्ट करने के बाद you only have 60 minutes to upload your PDFs, आंसर शीट का PDF बना के अपलोड करने के लिए और उसको फिजिकली सबमिट करने के लिए. बाकी जैसे भी आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, आपको कंसर्न अथॉरिटीज बता देंगी. तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी से, students are required to make a single PDF of their answer sheet and email the same to their own email ID also. आप लोगों ने एक ईमेल आईडी, जैसे ही आप अपने प्रिस्क्राइब्ड ईमेल आईडी को, अगर आपको कॉलेजेस एक ईमेल आईडी दे रही है, यूनिवर्सिटी एक ईमेल आईडी दे रही है, कॉलेजेस दे रहे हैं, उनको आपने जैसे ईमेल करनी है, वहां आप अपने आप को भी करके रखोगे. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है बाद में, तो यू विल हैव अ प्रूफ कि हमने ये टाइम के अंदर PDF सेंड कर दिया था. In case any discrepancy in online or physical submission of the answer sheet, the candidate would be asked to forward the time-stamped email to the nodal center or college. तो अगर कोई गड़बड़ होती है, आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रूफ दो आपने कब सबमिट किया था. और यहाँ पे submission of hard copies of the answer sheet of papers conducted in the morning slot should be done through the physical mode by 2 PM. जो सुबह पेपर हुए हैं उनका 2 बजे तक सबमिशन हो जाना चाहिए, नॉट लेटर देन 2. और जो इवनिंग स्लॉट वाले हैं, जो 4:30 पेपर खत्म होगा, उनको 6 बजे के बाद टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल सबमिशन के लिए. मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है एज अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी वो यही है, 2 फॉर मॉर्निंग एंड 6 फॉर इवनिंग. और डेमो वीडियो कैसे स्कैन करना है, PDF क्रिएट करना है, अपलोड करना है, UGC ने भी अपनी वेबसाइट पे UGC नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है. और ध्यान रखना है आपने, पिक्चर्स अलाउड नहीं है, JPG फॉर्मेट अलाउड नहीं है. यहाँ बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इट शुड बी ओनली द PDF. अगर आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, वो एंटरटेन नहीं होंगी. Then all the important announcements, notices related to examination are always uploaded. They are available. कहाँ पे? Notice board. Be very careful. Notice board और date sheet section जो है examination का, वहाँ पे everything is available. तो be careful. और किसको आपने authentic मानना है? Only these are to be considered authentic जो यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पे होंगी. In case any student confronts any problem in downloading the question paper, he or she may call the helpline numbers provided on the portal. तो अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा क्वेश्चन पेपर, online.pu.exam.in पे contact कर सकते हो. Then there is a special note, visually impaired or disabled students are allowed to have assistance from a subscribe or writer as per the university rules, and no separate permission from the university is required for this purpose. तो see ये किनके लिए applicable है, and I hope all the instructions are clear. आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है. थोड़ी सी changes आई हैं. अब आपकी आंसर बुकलेट का फॉर्मेट कैसा होगा, पिछली बार से चेंज है या नहीं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. So this is the format for your UG exams. आपको इस तरीके की शीट चाहिए.
आराम से अवेलेबल होंगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप किसी भी कैफे से, किसी भी बुक शॉप से आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. This is actually the format of the answer sheets. और यूजी के लिए 20 पेजेस ही अलाउड हैं. आपने नंबरिंग करनी है पेजेस के ऊपर जैसे यहाँ की हुई है. अगर आप इन शीट्स का PDF निकलवा लोगे, प्रिंट निकलवा लोगे तो यहाँ नंबरिंग हुई है. सिर्फ यहाँ रोल नंबर लिखना है और कहीं पे भी रोल नंबर नहीं लिखना. ओनली हियर, सिर्फ यहाँ जहाँ वो कह रहे हैं रोल नंबर लिखने को, इसके अलावा आपने रोल नंबर कहीं नहीं लिखना. पहले फिगर्स में लिखना है जैसे 3, 4, 6 ऐसे, और जब वर्ड्स में लिखना है तो आपने फिर 3, 4 उसको सिंप्लीफाई करके भी देना है. और दिस इज फॉर इवेल्युएशन पर्पस. आपने यहाँ कुछ नहीं करना. एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पार्ट. स्टार्ट राइटिंग ऑन योर आंसर्स बिलो. यहाँ पे आप लिखना शुरू कर सकते हो. यहाँ पे यू कैन स्टार्ट राइटिंग. ये पार्ट आपने यूज करना है, राइट? सो यूज दिस. ये नहीं है कि इसको ब्लैंक छोड़ देना है. यूज दिस, इसको यूज करना है आपने. ऑल राइट, यहां से आपने अपने आंसर्स लिखने शुरू करने हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पीजी आंसर बुकलेट कि उसमें कोई फॉर्मेट में चेंज है कि नहीं है. एंड यस, देयर इज अ चेंज. यहाँ पे देखिए चेंज क्या है. वहां पे 20 शीट्स हैं, यहाँ पे 24 हैं और पीजी के लिए 24 हैं. अब एडमिट कार्ड आगे आप लगाओगे यूनिवर्सिटी की. यहाँ इन इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, बट इन केस दैट इज रिक्वायर्ड सो यू आर गोइंग टू बी इंटीमेटेड अबाउट द सेम. यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शंस में एडमिट कार्ड सेपरेटली लगाना इस बार उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ. बट अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं आपकी कॉलेजेस की तरफ से या डिपार्टमेंट्स की तरफ से, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. तो अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो 24 शीट्स का PDF बनेगा और अगर एडमिट कार्ड है तो 25 का हो जाएगा. और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है. आपका ईमेल जो जैसे पिछली बार था, आपकी ईमेल में PDF जो अटैच्ड है उसका साइज 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आपकी ईमेल वो PDF अपलोड नहीं होगा और योर ईमेल विल नॉट रीच द रिक्वायर्ड ईमेल ID. तो बी वेरी केयरफुल. आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं. So once again, here on your screen, 1 out of 24 sheets का ये जो PDF है, this is available on Punjab University PUCHD करके जो puchd.ac.in वेबसाइट पे अवेलेबल है. वहां से आप सॉफ्ट कॉपी जो है आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF और उसका प्रिंट ले सकते हैं. pu.ac.in. अगर आप ये भी गूगल पे टाइप करोगे you will actually have the university website in front of your eyes and you can have the required documents from there. So that was all and I hope everything is clear. I hope everything is clear, and for any clarification, you may contact your concerned teachers and colleges. So with this, all the very best for your exams. I hope you all are going to do well. Thank you.